यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड टुडे वी विल डिस्कस about the uh, theoretical aspects and the characteristics of the normal distribution. Hope screen is visible to you. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, today we will discuss about distribution. Distribution is basically have a two type. One is a uh, individual distribution in which we covered mean, median, mode, standard deviation, which we have covered in the last semester. And the second one is known as frequency distribution, theoretical frequency distribution. And frequency distribution have a two categories. One is a discrete and second is continuous. And whenever we discuss about the discrete uh, theoretical probability distribution, we have covered binomial distribution and the Poisson distribution. And the third, as in the continuous probability distribution, we have covered normal probability distribution, जो कि आज हम cover करेंगे. Normal distribution is a one of the most important and widely used continuous probability distribution, which is mainly used to study the behavior of the continuous random variables like height, weight, etc. of the groups of the students. Normal distribution was discovered by the English mathematician. The name is Abraham de Moivre. It was firstly discovered by the mathematicians Abraham de Moivre in 1733. But after that, there are some rediscovery under this type of distribution I have done, and after that, it is applied by the Laplace and the Gauss. And normal distribution is also known as Gauss distribution after the name of Gauss. And this type of distribution is used for the various natural and the social science problems when we have to study about the behavior of the continuous random variables like height, weight of the group of the student. We are using normal distribution. Normal distribution is a technique in which we are using to study about the behavior of the random variables. And when the variables are in the group form, then we are using a normal distribution. Uh, the normal distribution was discovered by the de Moivre in the year 1733 to solve the problems in the gains and chances. And that times that the method is used only for the solving the problems of gains and chances. But after that, the in the year 1949, it was applied in the natural and the social sciences issues by the French mathematician that was the Laplace in the year 1949. After that, this concept is further developed by the Gauss, and the literal meaning of the normal is average. And the normal distribution में जो हम word use करते हैं normal, that means a average. And the shape of the normal distribution is that कि it never touched to the baseline. It never touched to the baseline, and it's just like a bell shape. जैसे आपने मंदिर में एक घंटी देखी होगी, वो बेल शेप की बात करते हैं हम, तो सेम हमारे पास उसी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो शेप होती है. और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब भी हम बात करते हैं, जो ये हमारा ये पॉइंट है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट, जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. दैट इज अ लेफ्ट साइड and it is a right side. It's a right side and it's a left side. So whenever we're discussing about the left and right side, and that point, the mean, median, and mode all are equal. Under the normal distribution, the mean, median, and mode, which are the center tendency measures,
which are used for the calculating the average, midpoints, and the frequency of the particular aspect. And normal distribution have a uh, at that point the mean, median, and mode all are equal, and it is called highest peak point. And from this point it divided into the two equal parts. One is known as left side and another is known as right side. Yeah, you can see that if the total area is 100%, the 50% area is on the left side and the 50% area on the right side. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द एसडी स्टैंडर्डाइजेशन? ये आगे जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे वहां पे बताऊंगा कि ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया प्रॉपर्टी. एंड अबाउट द एरिया प्रॉपर्टी विल आज हम डिस्कस करेंगे आगे इसको. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, the system, it's a symmetric from the peak of the curve where the mean is. For example आप यहाँ पे देख सकते हैं तो it's a symmetric. Symmetric means कि अगर मैं इस एरिया को उठा के इस एरिया के ऊपर फिट कर दूं तो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, क्योंकि ये वो है कि जिसने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. जैसे हमारा एक कॉइन होता है, अब एक कॉइन सेम वैसा ही कॉइन ले लीजिए, उसके ऊपर दूसरे कॉइन के रख दोगे तो नीचे वाला कॉइन नहीं दिखेगा, क्योंकि डेट इज सिमेट्रिक इन द नेचर, मतलब सेम एक जैसा है. तो सिमिलरली जब हम बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तो इसका जो इट्स अ सिमेट्रिक फ्रॉम द पीक ऑफ द कर्व, जहां पे इसका मीन एग्जिस्ट करता है दैट इज अ पीक पॉइंट. जैसा कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मीन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड पीक पॉइंट. एंड फ्रॉम दिस पॉइंट द एंटायर शेप इज बिकम अ सिमेट्रिक. जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया, इफ वी हैव अ टोटल एरिया इज 100%, तो 50% इज दिस एंड 50% इज दिस. द मीन, द मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व डेटा, अगर मीन के बारे में बात करें, जिसके बेसिस पे हम जितना ज्यादा हमारा डेटा मीन के से दूर जाएगा तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास रिजल्ट्स जो है डिफाइन होते हैं. व्हेन वी आर प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ या इन आंसर शीट, तो बेल शेप्ड है जिसमें मीन, मीडियन और मोड की जो वैल्यू है दैट आर द सेम वैल्यू एंड दैट अपीयर ऑन द पीक पॉइंट. हियर मीन, मीडियन, मोड all are equal and it said be perfect symmetry. What it means, if you fold it the middle, at the middle point you will get the two equal halves, since one half of the observable data point fall on the each side of the graph. 50% area is a right side and 50% on the left side. तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर अगर आप इसको फोल्ड कर दें तो एक पार्ट दूसरे पार्ट को ढक लेगा प्रॉपर्ली, जो एक कव का एक पार्ट है वो दूसरे पार्ट को जो है प्रॉपर्ली कवर कर लेगा. एंड अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके पैरामीटर्स, व्हाट इज द पैरामीटर्स? पैरामीटर्स आर द, यू कैन से दैट द पॉइंट्स ऑन basis we are calculating the we are studying the behavior of the particular data. तो यहाँ पे जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो इसके अंदर जो पैरामीटर है जिसका रोल रहेगा सबसे ज्यादा वो रहेगा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ही इसके दो मेन पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम यूज करते हैं. तो जो पैरामीटर की जब बात आती है, on the basis of parameter the shape, probability of the distribution, जो है जैसे जैसे पैरामीटर की वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारा शेप के अंदर भी चेंजेस आएगा. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो पैरामीटर्स की जब बात आती है, that are the main parameters under the normal distributions are mean and the standard deviation. And now in a detail we will discuss about these parameters. First is mean, and we have know about the meaning of the mean. Mean is used by the researcher as a measure of center tendency. It describes the distribution of the variables as a ratio of the intervals, and under the normal distribution graph the mean defines the location of the peak point and the most of data points are clustered around the mean. If there is a change
move to the either on the left or right side of the x-axis, so accordingly our shape of the normal distribution change accordingly. And the second parameter is standard deviation. Standard deviation is a measure of the dispersion which a point that is relative to the calculating the mean. ये हमें बताता है कि हमारा जो डाटा है वो एवरेज से कितना दूर है और उसके बीच में क्या डिस्टेंस है मीन और ऑब्जर्वेशन के बीच में. तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर कर्व के अंदर अगर हम बात करें तो उस विड्थ को, डिस्ट्रीब्यूशन की विड्थ और एक्सपेंशन को जो है that depends on the standard deviation. So standard deviation and the mean are both are the main parameters of the normal distribution. Now that is the most important part of this chapter, and the important question from the examination point of view, that is a properties of the normal distribution, and it is also known as characteristics of the normal distribution, and it's also known as characteristics of normal curve where normal distributions both are the same terms. As we earlier discussed that it's a perfectly symmetric shape. It means the distribution curve can be divided into middle to produce the two equal halves. जो symmetric shape है, जब आप हाफ, जब भी हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, बेल शेप की बात करते हैं, तो हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम बात करें, इट इज टोटली सिमेट्रिकल एंड द बेल शेप, and at the center point, if we fold the curve along its vertical axis at the center, तो जो हमारे पास दोनों हाल्फ्स हैं they would coincide, मतलब एक दूसरे को अच्छी तरह से ढक लेगी और दूसरी जो है वो हमें शो नहीं होगी. जैसा कि इस डायग्राम के अंदर हमने बात की थी कि अगर मैं इस पार्ट को, इस वाले पार्ट को उठा के ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर कर दूं तो ऑटोमेटिकली एक जो इधर वाला पार्ट है वो दूसरे वाले पार्ट को ढक लेगा, मतलब उसको फोल्ड, जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो हमारे पास जो है इट इज अ सिमेट्रिक एंड द बेल शेप. सेकंड point we have already discussed that the mean, median and mode all are equal in the normal distribution. The middle point of the normal distribution is a point where the maximum frequency, which means that that is the most observation of the variables. The midpoint is also point where these three measure falls. तो इसे हम वो जो हमारा जो मिड पॉइंट है जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट, that is known as mean or median or mode. And under the normal distribution, it's a perfectly distribution where mean, median, mode and all are equal. And the next point is empirical rule, and which is also known as area property. In the normal distribution data, जैसे कि अगर हम बात करें, एक प्रोबेबिलिटी हमारी कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, किसी भी केस की बात करें. सिमिलरली अगर मैं उसको परसेंटेज की फॉर्म में बात करूं तो इट बिटवीन द, अगर परसेंटेज की बात करें, एक को हम बोलेंगे 100%. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जिस तरह से वेरिएबल्स होंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके अकॉर्डिंगली एरिया जो है वो कवर होता चला जाएगा. One of the most important property of normal curve is area relationship property. इसे हम area relationship property भी बोलते हैं, and it's also known empirical rule is also known as. तो इसके अंदर जो है टोटल एरिया जो है नॉर्मल कर्व के अंदर वो 1 होता है, और अगर मीन में से, अगर हम मीन में से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करें या प्लस करें तो हमारा एरिया कितना कवर होता है, 68.25%. एंड ये पॉइंट हमें याद रखना है. दूसरा, अगर हम मीन में से मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया जाए स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो इट विल कवर 95% एरिया ऑफ द कर्व. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर कवरिंग द 3 times of the standard deviation and we are adding or less from the mean 3 times of the standard deviation, it will cover
approximately 99% area, 99.73% एरिया, तो अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास ही हो गया, तो उस एरिया को जो है वो कर्व को कंप्लीट करता है। इस डायग्राम से हम इसको समझेंगे। जो यहाँ पे ये साइन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्स बार मीन। जैसा कि हमने बात किया, अगर मीन के अंदर एक स्टैंडर्ड डेविएशन को प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो ये कितना एरिया कवर करता है? 68%। कितना एरिया कवर कर रहा है? 68%। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर मीन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का डबल ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो ये कितना एरिया कवर करेगा? 95%। और on the other hand, if we are covering mean plus 3 times of the standard deviation or minus the 3 standard deviation, it covered approximately 99 plus 99.7% of the data if within a 3 standard deviation of the mean. So it is known as the area property. Sometime it come under the 4 marks क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, एक्सप्लेन द एरिया प्रॉपर्टी। तो एरिया प्रॉपर्टी के बारे में जो है आपने इस डायग्राम को भी बना सकते हैं आप साथ में, और जो अभी से पहले हमने स्लाइड डिस्कस की है दैट इज अबाउट द, यही थियोरेटिकल बात आप साथ में लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो हमारे पास जो है तो ये डिफाइन करता है कि जब आप मीन में से एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज नोन एज एरिया प्रॉपर्टी एंड दैट इज आल्सो नोन एज एरिया रिलेशनशिप between the two parameters, that's are mean and standard deviation। तो ये हमारे पास जो है इस पर्टिकुलर एरिया को जो है ये कवर करता है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर सिमेट्रिक। जैसा कि अभी हमने बात की थी, ये सिमेट्रिक होता है, यूनिमॉडल होता है एंड इट आल्सो एस्पेक्टिक एंड द मीन मीडियन मोड आर इक्वल। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कैसे? जैसे अभी ये पॉइंट है, इस पॉइंट ने इस कर्व को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर आप इधर वाले पार्ट को फोल्ड करके इसके ऊपर करोगे तो वो जो इधर वाला पार्ट है, राइट वाला पार्ट है, वो लेफ्ट को ढक लेगा, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। यूनिमॉडल, यूनिमॉडल का मतलब होता है कि इसके अंदर एक ही मोड होता है, वो होता है इस पॉइंट के ऊपर जहां पे हमारा मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या है? इक्वल हैं। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास तीनों के तीनों जो है इक्वल हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एस्पोटेटिक टू द मीन्स कि जो ये कर्व है इट नेवर टच द बेस लाइन, दैट इज कॉल्ड बेस लाइन। जिसके ऊपर मेरा एरो का साइन है दैट इज नोन एज अ बेस लाइन। तो ये कभी भी इस लाइन को टच नहीं करती। तो इसलिए जब भी आप डायग्राम बनाएंगे प्लीज इस चीज को ध्यान रखें कि आपने इस कर्व को जो है इस बेस लाइन के साथ टच नहीं करना। क्लियर होगी बात? यहां तक क्लियर है? कुछ समझ आ रहा है? यस सर। ओके, तो हमारे पास तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जब बात आती है तो इट द कर्व नेवर टच टू द बेस लाइन, it is near the baseline but it never touch the baseline. Clear? Next property is unimodal distribution. Unimodal distribution means where there is only one mode and that is that point here. On that point it's a unimodal distribution where the mode exists, and here is a point where your mean, median and mode are equal. And you can also write the property that is the equivalency of the mean, median, mode. So under this distribution mean, median, mode are
equal. And we already discussed it's a symmetric, we already discussed it's a bell shaped. We have discussed about the unimodal, what it means. It has only a one mode. What it means, uh, कि at a highest point it exists and where the mean median mode are equal. So it's known as unimodal distribution. And it also aesthetic भी कह सकते हैं इसे कि ये बेसलाइन के साथ. what it means, it means it is near the baseline but it never touch to the baseline, it never touches. ये लगेगा आपको देखने में कि ये कर्व जो है कभी ना कभी इसको टच कर देगी, पर ये कर्व जो है इस बेस लाइन को कभी भी टच नहीं करती. तो डेट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कि नॉर्मल कर्व इज ऑलवेज नियर टू द बेस लाइन बट इट नेवर टच इट. इट इज टेंडेंसी, ये हमें लगेगा देखने में कि ये टच करने वाली है बट इट नेवर टच इट. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रेंज. A normal curve extend to the infinity on the either minus infinity to plus infinity. What stand for the range? जो ये बेस लाइन है इसके ऊपर जो वैल्यूज हैं that is from minus infinity to plus infinity is possible. मतलब आपके पास that is representing the x value जिसके बेसिस पे हम जो है स्टडी करेंगे किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर को जिस चीज के बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं. तो ये कहना चाहता है जो x की वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है. नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है. इन्फिनिटी का मतलब यही हो गया कि मतलब कुछ भी वैल्यू, माइनस में कोई भी पॉइंट, इवन प्लस में कोई भी पॉइंट. एंड द टोटल एरिया जो हमारे पास है डेट इज अ 1. टोटल एरिया इज 1. टोटल एरिया जो होता है हमारे पास डेट इज 1. डेट रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया जो है प्रोबेबिलिटी के अंदर भी प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम 1 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो हमारे पास सेम it's a part of the probability distribution and the normal covers total area is 1. But it means 50% on the left side and the 50% on the right side because जो हमारा यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो टोटल अगर एरिया 1 है तो 0.5 इधर हो गया, 0.5 लेफ्ट साइड हो गया. एंड द ऑर्डिनेट हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व एट द मीन इज मैक्सिमम. जैसे हमने बीच के पॉइंट को डिस्कस किया था जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिफाइन करता है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं. मीन ऑर्डिनेट मीन्स इट डिवाइड द एंटायर एरिया into the two equal parts, that is 50% on the left side and the 50% on the right side. So total area is 1 as we discussed in the previous slide. So but it means 0.5 area is on the left side and 0.5 area on the right side. So 50% area, 0.5 or 50% both are the same terms. Each of the two shaded area is 0.5. आप इस shades को देख सकते हैं, अलग अलग colors की shades है हमारे पास. That is representing the symmetric about the mean. And the where is the mean exist? कोई बताएगा? जो ये लाइन है हमारे पास जो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है that is representing the maximum ordinate value, जहां पे जो इसको दो इक्वल पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है. क्लियर. इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. यस.
If anyone have a doubt, तो you can ask please. समझ आ रहा है कुछ के नहीं? अरे सर Yes. और ओके यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं. दैट इज अ equal distance of the quartiles. Equal distance is also known as equidistance. Equal distance मतलब क्या है? अब मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है एक सीरीज का मिड पॉइंट. मतलब एक, अगर मान लो मैं एक स्टिक लेता हूं, एक डंडा लेता हूं, ठीक है, उसका जो मिड पार्ट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड मीडियन, मिड पॉइंट. ठीक है. अब अगर मैं क्वार्टाइल की बात करूं, क्वार्टाइल क्या करता है? पूरी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है. आप उसी डंडे का एग्जांपल लें, आपने उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. ठीक है. मान लो मेरे पास एक 20 सेंटीमीटर का डंडा है, मैंने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 5 5 5 5. तो अब इसमें ये क्या कहना चाहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीडियन का क्वार्टाइल्स के साथ जो है इक्वल डिफरेंस होता है. अगर मैं मीडियन में से, मीडियन क्या होता है? मिड पॉइंट, जिसे हम Q2 भी बोलते हैं, मतलब कि मिड पॉइंट. देखो अब आप एक स्टिक ले रहे हैं, अगर उसको मैं इक्वल पार्ट में अगर करूं तो पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट मिड में आ जाएगा, थर्ड पार्ट और चौथा पार्ट बिल्कुल कोने पे आएगा. तो जो मिड पॉइंट है उसका जो पहला पार्ट है उसका डिस्टेंस, उससे नेक्स्ट वाले का डिस्टेंस, ऑटोमेटिकली उसके आपस में डिस्टेंस. तो वो कहना चाहता है कि जो क्वार्टाइल्स हैं उनका इक्वल डिस्टेंस होता है अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसका क्या मतलब हुआ? Q1 एग्जिस्ट करेगा पहले 25% पे लेफ्ट साइड पे, फिर अगला Q2 कहाँ रिप्रेजेंट करेगा? हमारा इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर. क्योंकि देखो अगर ये टोटल 100 है, ये मान लो मेरा स्टिक है यहां से लेके यहां तक, पहला पार्ट मान लो मैंने यहां तक लिखा, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और ये जाके चौथा पार्ट. क्योंकि क्वार्टाइल में ही होता है 4 इक्वल पार्ट. तो 25% एरिया, यहाँ पे हुआ 50%, क्योंकि यहाँ तक टोटल 50 है, तो 25 यहाँ हो गया, तो 25 यहाँ पे हो गया 50, और 25 यहाँ पे, ये 75 मतलब क्वार्टाइल 3, और जो बाकी बचा वो क्या हुआ? क्वार्टाइल 4 मतलब अगला 25. तो पूरा 100% एरिया हो गया. तो हमारे पास ये कहना चाहता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो क्वार्टाइल्स के बीच में डिफरेंस होता है दैट इज अ इक्विडिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस यू कैन से, जिसे हम इक्वल डिस्टेंस कह सकते हैं बिटवीन द वेरिएबल्स. नाउ नेक्स्ट इज अ property. If we want to calculate the quartile deviation under the normal distribution, the formula is it's a 2/3 of the standard deviation. Before it, I think we have discussed all this point. Yes. Okay. Quartile deviation under the normal distribution, the difference quartile deviation is equal to 2/3 of the standard deviation. जैसे हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए पहले Q3 माइनस Q2 अपॉन में 2 कर कैसे निकालते थे, बट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे QD को निकाला जा सकता है, जो कि 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का. Similarly, we can compute the mean deviation also here with the help of the normal distribution. Under the normal distribution, mean deviation का जो फॉर्मूला रहेगा that is 4/5 part of the standard deviation. That is a formula, you can say that will be known as a property. अभी आप कह सकते हैं जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है. Next is as earlier we had discussed, the probability distribution has a two types, discrete and the continuous. Discrete के अंदर आपके पास दो आते हैं, binomial and the Poisson distribution, और जो normal distribution है ये किसमें आता है? Continuous probability distribution के अंदर. इसलिए इसको हम continuous probability distribution भी कहते हैं. और we have already discussed about the parameters. तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है. देयर इज द टू पैरामीटर्स, द नेम्स आर मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड लास्ट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग the point from the, that is point when the curve change it from the curvature. means अगर हम यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे इधर जाएं और इक्वल इधर जाएं,
मीन्स दैट विल बी कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जैसे मान लीजिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एक माइनस कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, सेम अगर 2 करेंगे तो वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो होगा वो डिफरेंस इक्वल होगा, तो उस चीज को ये पॉइंट बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे कर्व जो है डेट इज अ कर्वेचर, जहाँ पे इसका कर्व जो है वो जहाँ से ये चेंज होना शुरू होती है कर्व जो है, इसके बाद ये हमारा ये शेप लेना शुरू करती है, तो डेट इज कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट इज दैट ऑन द x bar with minus standard deviation, x bar with the plus standard deviation. Thank you very much. चलिए अब आप देखिए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Hope you have understand about the particular aspect of the normal distribution. Yes, sir. If you have a doubt you can ask. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स, फिर इसको हम थोड़ा सा इसका दोबारा ओवरव्यू लेते हैं, दोबारा इसको हम डिस्कस करेंगे एक बार और थोड़ा सा, जस्ट नॉट इन द डिटेल, जस्ट इन द ब्रीफ। मैंने इस टॉपिक के ऊपर जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की एक पीपीटी सॉरी वीडियो बनाई हुई है, आई विल शेयर ऑन द मूडल। तो आप उसको दोबारा इसको रिवाइज करने के लिए जो है उसको एक बार देख सकते हैं सभी, और जो है एज अ अटेंडेंस आप वहाँ पे वीडियो देखते हुए अपना रोल नंबर एंड अपना नाम जो है चैट बॉक्स के अंदर टाइप करेंगे। क्लियर? चलिए अब मैं आपके साथ कुछ और शेयर कर रहा हूँ, that is about the normal distribution. Hope you have cleared about the normal distribution in the जो हमने इसको डिस्कस किया है इन डिटेल कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल पार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। क्लियर? तो हमने ये बात की नॉर्मल कर्व के बारे में कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है। इट्स अ वेल डिफाइंड वेल स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल कर्व जिसके अंदर हमारे पास मीन मीडियन मोड क्या होते हैं इक्वल, दैट इज अ डेफिनेशन। फिर इसकी शेप के बारे में हमने बात की थी, वी हैव डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स के को डिटेल में डिस्कस किया। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी, इट्स अ सिमेट्रिक एंड बेल शेप, we will covered from this slide each and everything we can covered from here। तो हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक है, यूनिमॉडल है, एस्पर्टिक है, वेयर द मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। एक ही डायग्राम से आप तीनों चीजें डिफाइन कर पा रहे हो। तो इसके बाद हमने इसी को डिस्कस किया डिटेल में, and the range, total area, ordinate, and it's your today homework also कि you have to write these points and you have to learn about it। Clear? क्योंकि it's a important question and sometime it comes जो है ये 15 नंबर का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम के अंदर आ सकता है। My screen is visible ना? Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। Sir, only the properties. Yeah, properties, yeah. Okay. Okay, thank you. Screen is visible ना? Yes, sir. ओके ओके, तो इसके बारे में आपने जो है इसको कवर अप करना है। ओके, तो आपने जो है मैंने आपके साथ 15 प्रॉपर्टीज जो है कवर की हैं, तो बुक में आपको यही प्रॉपर्टीज जो है 16 बना के दी हुई हैं। ठीक है, तो आप इनको जो है डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है कांस्टेंट, कहता है मीन को हम एक्स बार बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, वेरिएंस का मतलब ये होता है। और एक चीज और, इसमें कोटोसिस जो है जो आपने नहीं पढ़ा, एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसकी वैल्यू 3 होती है इसके अंदर, और कोफिशिएंट जो है डेट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिक शेप। तो हमारे पास जो है हमने इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। तो आपने देखिए मैं आपको 2 दिन दूंगा, आपने इन प्रॉपर्टीज को लर्न करना है सबसे पहले।
ये नहीं कि आप बस लिख लिया दैट्स ऑल। इसको आप लर्न करेंगे अच्छे ढंग से ताकि आपको इसके बारे में पता चले, क्योंकि ये इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके अंदर मैंने आज सिर्फ प्रॉपर्टीज ही कवर की है। जस्ट आप जब भी प्रॉपर्टीज आती हैं तो फर्स्टली आप डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। उसके बाद आप बता सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कि ये इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, तो उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं, बुक में नहीं दी हुई बट वी हैव कवर्ड। उसके बाद इसकी शेप के बारे में बता सकते हैं। तो उसके बाद तो पैरामीटर्स हमने उसमें ऑलरेडी कवर करने ही हैं। ठीक है, ये शेप हमारे पास आ गया, सिमेट्रिक है, बेल शेप है, मीन मीडियम और इक्वल होते हैं। ठीक है, इंपेरिकल रूल हम बता सकते हैं, डायग्राम बना दीजिए साथ में, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी बता दीजिए। ये मैंने इसलिए यहाँ कवर किए ताकि अगले पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो जाए। ये भी क्लियर हो जाएगा उससे, ये भी हो जाएगा। ये रेंज का पॉइंट आप बता सकते हैं, डायग्राम बना दें कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। टोटल एरिया 1 होता है ऑर्डिनेट, तो ये एरिया के अंदर आप ये भी डायग्राम बना सकते हैं, बता दीजिए टोटल एरिया इज 1, कि आप इसको 2 शेड कर दीजिए, एक थोड़ा पेंसिल, और डायग्राम आपने पेंसिल से बनाना है, एक थोड़ा डार्क कर दीजिए शेड, एक थोड़ा लाइट रहने दीजिए। तो ये इक्विडिस्टेंस, फॉर्मूलाज ऑफ QD MD, it main parameters, point of inflection, so that we have covered under this type of the normal distribution। चलिए अब मैं आपके साथ जो है कल हम बात करेंगे about the its practical aspects। Hope everybody cleared about the topic normal distribution। सर ये पीपीटी अपलोड कर देना मूडल पे। श्योर श्योर। ओके सर, थैंक यू। सर बोलिए बेटा। सर जैसे हमारे पास प्रोबेबिलिटी के 3 चैप्टर्स हैं, तो सर उसमें से मतलब ये जो आपने आज थ्योरी पार्ट करवाया, ये फर्स्ट चैप्टर से कंबाइन होकर आएगा या फिर अलग से क्वेश्चन आएगा सर? बेटा ये अलग से क्वेश्चन है, और ये ना चैप्टर अलग अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग ही टॉपिक्स हैं, तीनों टॉपिक्स अलग अलग है। ठीक है ना, मैं सारे तीनों टॉपिक कराऊंगा। मैं ये इसलिए ये करवा रहा हूँ पहले क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरा टारगेट है कि अगले वीक में इस टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। अब इसकी जो है एग्जाम्पल्स कराऊंगा और मैं और जो है इसके डायग्राम्स जो हैं, प्रैक्टिकल्स के डायग्राम आपके साथ में बताऊंगा कि इसका डायग्राम बनेगा, फिर मतलब सॉल्व वाला पार्ट आप खुद करेंगे। मतलब आपको मेरा टारगेट रहेगा कि इसके सारे क्वेश्चंस हम जो है साथ साथ कवर करेंगे, और रोज का मेरा टारगेट रहेगा कि टोटल 4 या 5 एक्सरसाइज है हमारी बुक में, इस चैप्टर में 4 के 5 एक्सरसाइज और 4 या 5 क्वेश्चन है, शायद एक एक्सरसाइज में ज्यादा है अदरवाइज जो हैं, और एक में तो एक भी है। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चन कवर करने हैं और कोशिश रहेगी डेली 1 या 2 टॉपिक हम कवर करें। ठीक है, तो इस पर्टिकुलरली टॉपिक्स को हमारा कवर करना जो है दैट इज अ मेन मोटिव।